Now today we will see cancellation, return deliveries and returns. Okay. Return delivery and returns. Okay. Now cancellation is also called as reversal. What is cancellation? Cancellation is nothing but whenever we do any material movement. For example, we do goods receipt using 101 movement. So once you do the goods receipt, a material document is generated and an accounting document is generated. Now, while posting this goods receipt, if we have done any error, हमने अगर कुछ भी उसमें गलत किया है, and if we want to correct the material document after posting it, it is not possible. We cannot change the material document. In material document, only header text can be changed, nothing else can be changed. So if we want to correct the wrong goods receipt or any goods movement that is posted, for example, you posted 561 movement and you want to correct it, it is not possible to update the material document and accounting document. So what is the way? We need to cancel this goods movement or we need to reverse this goods movement. So reversal of 101 is 102 movement type. Same way reversal of 561 is 562 movement type. Then we saw 501 movement type yesterday. So reversal of 501 is 502. We saw 103 movement type. Reversal movement type is 104. So for any movement type, the immediate next movement is its reversal movement. For each goods movement, there will be a reversal movement type. प्रत्येक movement type ला एक reversal ची movement type असते. So for each from movement type, you will have a reversal movement type. हर एक movement type का एक रिवर्सल कैंसलेशन का मूवमेंट टाइप बाय डिफॉल्ट होता है और होना चाहिए. सो व्हाट इज अ मूवमेंट टाइप? हम एक जगह से मटेरियल को दूसरे जगह पे रख रहे हैं, दैट इज अ मूवमेंट. अगर मुझे उसको कैंसिल करना है, इसका मतलब जहां पे मैंने रखा था वहां से उसको वापस रखना है. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज स्टोरेज लोकेशन 1000 एंड स्टोरेज लोकेशन 2000. स्टोरेज लोकेशन 1000 से अगर 5 क्वांटिटीज, सपोज करो यहाँ पे 10 क्वांटिटी है और यहाँ पे 0 क्वांटिटी है, तो मैंने एक मूवमेंट किया. आई डिड 311. 311 इज एक स्टोरेज लोकेशन से दूसरे स्टोरेज लोकेशन में स्टॉक का मूवमेंट. तो यहाँ से 5 क्वांटिटीज निकाल के मैंने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, तो यहाँ पे 5 क्वांटिटीज हो जाएगा और यहाँ पे 5 क्वांटिटीज रहेगा. 10 था, 10 में से 5 निकाल के मैंने इसमें डाल दिए, तो यहाँ पे 5 प्लस हो गए, यहाँ पे 5 माइनस हो गए. दिस इज 311 मूवमेंट. अगर मैंने ये गलत किया है और मुझे इसको करेक्ट करना है, तो आई विल कैंसल दिस 311. तो इसको जब मैं कैंसल करूंगा तो ऑटोमेटिकली मूवमेंट टाइप 312 इज सिलेक्टेड बाय द सिस्टम एंड यहाँ पे वापस 10 हो जाएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा. सो रिवर्सल or cancellation is nothing but cancelling the goods movement that is posted. So when we cancel it, automatically the immediate next movement is selected and the effect of the earlier goods movement is reversed. फॉर एग्जाम्पल, 101 का 102 करते हैं, तो 101 पे जो स्टॉक क्वांटिटी अपडेट होता है, स्टॉक का वैल्यू अपडेट होता है, दैट इफेक्ट विल बी नलिफाइड. 561 किया है, स्टॉक जनरेट हुआ, स्टॉक अकाउंट में वैल्यू पोस्ट हुआ. 562 किया, स्टॉक जीरो हो जाएगा, स्टॉक अकाउंट का वैल्यू भी जीरो हो जाएगा. सो द इफेक्ट ऑफ मूवमेंट टाइप दैट वाज पोस्टेड will be reversed, will be nullified with cancellation or reversal. Now we will see in system. Clear? Any doubt?
Now I'll create a new purchase order, copy it, save the page. Let's do a Migo. Now before doing the Migo, let's check the stock of this material. 220 MBE. So 4,900 quantities are available in unrestricted SL01 storage location. I'll do the goods receipt in SL02 storage location. How many quantities are there? 100 quantities. Okay, 100 case. So 5,000 quantities will update in storage location SL02. So a goods receipt is posted, displayed. If you check the stock, now in SL02 we have 5,000 quantities. ठीक है? So 5,000 quantities से मेरा stock increase हुआ. And if I go to document info, FI documents, 48,000 is posted to stock account and GRR account में 48,000 माइनस. तो यहाँ पे स्टॉक का वैल्यू प्लस हुआ, मतलब स्टॉक का वैल्यू बढ़ गया. नाउ इफ आई हैव wrongly posted this goods receipt and I want to correct it, the only option that I have is reverse the goods movement or cancel the goods movement. So here we need to select cancellation. Once you select cancellation, we need to give the reference of material document that was posted at the time of goods receipt, because we are cancelling the material document. Enter item. Okay, now one more thing, while cancelling the goods receipt or any goods movement, you cannot change the quantities. जितना क्वांटिटी गुड्स मूवमेंट में यूज किया था उतने का ही कैंसिलेशन होगा, पार्शियल का नहीं होता है. मतलब 100 रिसीव किया, 50 कैंसिल करना है, नहीं होता है. एंटायर डॉक्यूमेंट विल गेट कैंसिल. एंड इफ यू सी, द मूवमेंट टाइप 102 इज ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड. व्हाई इट इज ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड? बिकॉज ये कॉन्फ़िगरेशन में सेटिंग होता है मूवमेंट टाइप की. तो जो मूवमेंट टाइप है उसका रिवर्सल मूवमेंट टाइप क्या है, based on that configuration setting, system will select the reversal movement type automatically. You just have to select item, okay, check it and specify a reason. Why reasons are selected? Reasons are selected because if you want to do the analysis कि हमेशा goods receipt cancel हो रहे, क्यों हो रहे, what is going wrong, for that you can specify the reasons and you can make them mandatory, so that आपको एनालिसिस के लिए समझ में आएगा कि अगर बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्स कैंसिल हो रहे हैं तो उसके पीछे रीजन क्या है, एंड यू कैन टेक अ प्रिवेंटिव एक्शन ऑन दैट. सो यहाँ पे मैंने जैसे रॉन्ग स्टोरेज लोकेशन एंटर सिलेक्ट किया, 0011, चेक इट एंड नाउ यू कैन पोस्ट द गुड्स रिसिप्ट. तो मैं गुड्स रिसिप्ट को पोस्ट करूंगा तो क्या होगा, सॉरी इसको कैंसिल करूंगा तो क्या होगा, तो जो इफेक्ट मेरा गुड्स रिसिप्ट के साथ हुआ था 101 के साथ, वो नलीफाई हो जाएगा, ये क्वांटिटी जीरो हो जाएगी. बिकॉज गुड्स रिसिप्ट को कैंसिल किया, मतलब एज गुड एज हमने मटेरियल को रिसीव नहीं किया, तो ये जीरो हो जाएगा. ऑन ऑर्डर स्टॉक 5,000 वापस दिखेगा क्योंकि पीओ का क्वांटिटी ओपन हो जाएगा. ठीक है, और जो स्टॉक अकाउंट में वैल्यू पोस्ट हुआ था वो भी, जहां पे 48,000 प्लस हुआ था, अभी वहां पे 48,000 माइनस हो जाएगा. मतलब इस गुड्स मूवमेंट से जो इफेक्ट हुआ था वो जीरो हो जाएगा. पोस्ट इट. नाउ a new material document is generated. For each and every goods movement, a new material document is generated. 102 is a separate goods movement. So a new material document is generated here. Display this material document and you can see 102 कितना quantity था, 5,000 quantities था. Go to document info, FI documents, accounting document. A new accounting document is generated. एंड स्टॉक अकाउंट में अभी आप देखोगे तो 48,000 माइनस है और GRIR अकाउंट में 48,000 प्लस है. 101 पे ये 48,000 प्लस था और ये माइनस था.
तो इस अकाउंट में 48,000 माइनस गए तो वो जीरो हो गया, इसमें 48,000 प्लस गए तो वो इफेक्ट जीरो हो गया। एंड इफ यू चेक दी स्टॉक नाउ, SL02 में अभी कुछ भी स्टॉक नहीं। So this is how you cancel the goods receipt. And then again you do a goods receipt against PO and receive the quantities. This is what is cancellation or reversal. तो जब भी cancellation होता है तो अर्लियर गुड्स मूवमेंट का जो भी इफेक्ट था वो नलीफाई होता है। एक नया मटेरियल डॉक्यूमेंट जनरेट होगा और नया अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट जनरेट होगा। अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट में एग्जैक्टली रिवर्स एंट्रीज ऑफ द अर्लियर गुड्स मूवमेंट विल पोस्ट टू नलीफाई द इफेक्ट। दिस इज व्हाट इज कैंसिलेशन। कोई और मूवमेंट टाइप का अगर देखना है, फॉर एग्जांपल लेट अस डू 561 गुड्स रिसिप्ट अदर 561 कितना क्वांटिटी लेना है, 5 ले लेते हैं। पोस्ट डेट चेक करो, अभी स्टॉक SL02 में ही लिए है मैंने, तो SL02 में अभी हमको कुछ क्वांटिटीज दिखेगा। SL02 में 100 क्वांटिटीज, 5 केस लिया था, 5 केस का 100 क्वांटिटी यहाँ पे अपडेट हुआ। नाउ डिस्प्ले द मटेरियल डॉक्यूमेंट एंड चेक द अकाउंटिंग एंट्रीज। सो अकाउंटिंग एंट्री में 960 स्टॉक अकाउंट में प्लस हो गया और इन्वेंट्री टेकिंग में 960 माइनस हो गया। अभी इसको रिवर्स करते हैं। मीगो कैंसिलेशन 5640 5640 ही है। एंटर। टोटल क्वांटिटीज विल बी रिवर्स्ड, क्वांटिटी कैन नॉट बी चेंज। आइटम ओके, रीजन डाला, रीजंस नहीं है, इसके लिए रीजन एक्टिवेटेड नहीं है और ये फील्ड मैंडेटरी है तो ये हमको अलाउ नहीं करेगा पोस्ट करने के लिए। लेट मी गो टू ये मोमेंट टाइपच्या कॉन्फिगरेशन मध्ये सेटिंग असतं। सो यू कैन सी हियर रिवर्सल मोमेंट टाइप। सो 561 के लिए 562 यहाँ पे मेंटेन किया हुआ। एंड रीजन फॉर मूवमेंट में यहाँ पे कुछ भी नहीं है। न्यू एंट्री 5 sorry 562 के लिए कोई रीजन नहीं है। So I'll do one thing. I'll create an entry 562 reason 11. Tomorrow I'm going to teach you this. Okay.
ये कैसे किया जाता है क्या नहीं अभी के लिए मैं इसको, तो यहाँ पे हम रीजन स्पेसिफाई करते हैं और कंट्रोल रीजन में वी नीड टू एक्टिवेट द रीजन फॉर द मूवमेंट टाइप। तो यहाँ पे जैसे ये ऑप्शनल रखा हुआ है, हियर वी नीड टू मेक इट मैंडेटरी एंड सेव इट। See here, check it and you can post it. Now display it, the accounting entries, तो accounting entries will be reversed। यहाँ पे 960 माइनस 960 प्लस, और यहाँ पे था 960 प्लस 960 माइनस, तो ये इफेक्ट जो है जीरो हो गया। एंड इफ यू चेक द स्टॉक नाउ, stock is also zero. So this is how the cancellation works. Any doubt on cancellation? Yeah. Okay, good. Now next is return delivery. Okay. रिटर्न डिलीवरी, वेंडर ने हमको मटेरियल भेजा है, हमने उसका गुड्स रिसिप्ट किया, गुड्स रिसिप्ट करने के बाद क्वालिटी का चेक हुआ, क्वालिटी ने मटेरियल को रिजेक्ट किया। क्वालिटी ने बोला कि अगर हमने 100 क्वांटिटी लिया है, 100 में से 50 क्वांटिटी जो है वो हमारे क्वालिटी पैरामीटर्स में नहीं बैठता है, वी कैन नॉट यूज इट। तो क्या कर सकते हैं? देन वी रिटर्न दी 50 क्वांटिटीज बैक टू द सप्लायर। हम सप्लायर को 50 क्वांटिटी रिटर्न कर देते हैं, वापस भेज देते हैं। दैट इज कॉल्ड एज रिटर्न डिलीवरी। तो सप्लायर को रिटर्न करना मटेरियल, ठीक है। तो सप्लायर को जब हम मटेरियल रिटर्न करते हैं तो हमारे पास क्या ऑप्शन है? बिकॉज देयर विल बी टू थिंग्स। एक तो हम उसको पेमेंट नहीं करेंगे जो 50 क्वांटिटी हमने उसको रिटर्न किया है, या फिर अगर ऑलरेडी हमने उसको पेमेंट किया है तो उसको हम पैसा वापस मांग सकते हैं, उसके लिए हम उसको क्रेडिट मेमो रेज करते हैं। The other way is you return 50 quantities to supplier and supplier will send you back another 50 quantities. उसका सप्लायर क्या करता है? आपको एक्सचेंज करके 50 क्वांटिटी देगा। वो जो डैमेज 50 क्वांटिटी था वो वापस ले लेगा, उसके बदले में आपको एक वापस 50 क्वांटिटी का डिलीवर करेगा। So these are the options available. So रिटर्न डिलीवरी जब हम हमारे ओन स्टॉक से करते हैं, मतलब हमने गुड्स रिसिप्ट नॉर्मल किया है 101 मूवमेंट टाइप के साथ, एंड इफ वी आर रिटर्निंग इट बैक टू द सप्लायर, द मूवमेंट टाइप यूज्ड इज 122। अगर गुड्स रिसिप्ट 101 मूवमेंट टाइप से हुआ है तो रिटर्न डिलीवरी का मूवमेंट टाइप 122 होगा। अगर गुड्स रिसिप्ट हमने जीआर ब्लॉक स्टॉक में किया है फॉर विच वी यूज मूवमेंट टाइप 103, तो रिटर्न डिलीवरी कहां से होगा? रिटर्न डिलीवरी विल बी विथ मूवमेंट टाइप 124। ठीक है, 123 इसका रिवर्सल होगा, 125 124 का रिवर्सल होगा। नेक्स्ट मूवमेंट टाइप विल बी रिवर्सल मूवमेंट टाइप। सो गुड्स रिसिप्ट अगर 101 से किया है तो रिटर्न डिलीवरी 122 से होगा। पीओ होगा, पीओ के बाद गुड्स रिसिप्ट होगा, गुड्स रिसिप्ट के बाद रिटर्न डिलीवरी होगा। गुड्स रिसिप्ट के पहले हम उसको रिटर्न नहीं कर सकते, जब तक मटेरियल आएगा ही नहीं हम उसको रिटर्न नहीं कर सकते। तो गुड्स रिसिप्ट होना चाहिए, गुड्स रिसिप्ट के बाद ही हम उसको रिटर्न कर सकते हैं। तो गुड्स रिसिप्ट 101 से हो सकता है या 103 से हो सकता है। 101 से हुआ है तो 122 से हम रिटर्न करेंगे, 103 से हुआ है तो 124 मूवमेंट टाइप से हम उसको रिटर्न करेंगे। नाउ जब हम रिटर्न डिलीवरी करते हैं तो वी गिव द रेफरेंस ऑफ मटेरियल डॉक्यूमेंट। तो गुड्स रिसिप्ट के टाइम पे जो मटेरियल डॉक्यूमेंट जनरेट होता है उसके रेफरेंस में उसका रिवर्सल होता है, रिटर्न डिलीवरी होता है। रेफरेंस में ही रिटर्न डिलीवरी होता है, पीओ का रेफरेंस नहीं होता है।
जिस डॉक्यूमेंट के साथ हमने उसको 101 मूवमेंट टाइप पे जो मटेरियल डॉक्यूमेंट जनरेट हुआ था उसके अगेंस्ट में उसका रिटर्न डिलीवरी होता है। नाउ रिटर्न डिलीवरी कैन बी डन फॉर पार्शियल क्वांटिटीज। रिटर्न डिलीवरी जो है वो पार्शियल क्वांटिटी का भी हो सकता है। जैसे कैंसिलेशन में टोटल क्वांटिटी कैंसिल होता है, वैसे रिटर्न में टोटल नहीं होता है। रिटर्न में आप जितना चाहो उतना रिटर्न कर सकते हो। और रिटर्न डिलीवरी के बाद क्या क्या ऑप्शन है? पहला ऑप्शन है, अगर सप्लायर हमको वापस मटेरियल दे रहा है तो उसको हम बोलते हैं सब्सिक्वेंट डिलीवरी। सिक्वेंट डिलीवरी का मतलब जो मटेरियल हमने उसको रिटर्न किया उसके बदले में वो हमको वापस मटेरियल डिलीवर कर रहा है, दैट इज सब्सिक्वेंट डिलीवरी। सेकंड, अगर हमने इनवॉइस बुक किया हुआ है, रिटर्न करने से पहले ही हमने सप्लायर का इनवॉइस बुक किया हुआ है, या पेमेंट हमने सप्लायर को किया हुआ है, जितना क्वांटिटी हमने रिसीव किया था उसका इनवॉइस हुआ है या उसका पेमेंट हुआ है, तो उस केस में हमको क्या करना चाहिए? हमको क्रेडिट मेमो पोस्ट करना चाहिए। इस केस में हम सप्लायर से मटेरियल वापस नहीं लेते हैं, हम उससे पैसा मांगते हैं। सो क्रेडिट मेमो इज नथिंग बट वी आस्क मनी फॉर दोज क्वांटिटीज विच वी रिटर्न। जितना हमने उसको रिटर्न किया उतने का पैसा हम उसको वापस मांगते हैं। सो दिस इज व्हाट इज रिटर्न डिलीवरी। नाउ वी विल टेस्ट इट इन सिस्टम। I'll create a PO now. Save the PO. Display the PO. Okay. 220 100 case. I'll change the quantities here. Instead of 100 case, I'll make it as 10 case. Okay. Post the PO. Copy the PO and do the goods receipt. PO, goods receipt, purchase order, PO। 10 केस ऑर्डर किया है तो 500 क्वांटिटी अपडेट हो जाएगा। कहाँ पे होगा? स्टोरेज लोकेशन SL02 में मैं इसको लेता हूँ। चेक एंड पोस्ट। तो SL02 में अभी 200 क्वांटिटी मुझे जो है स्टॉक में दिखाई देगा। SL02 में क्वांटिटी डिस्प्ले 500 क्वांटिटी अपडेट। ठीक है, तो एक केस का 50 क्वांटिटी था, हमने 10 केस रिसीव किया, 500 क्वांटिटी SL02 में यहाँ पे इंक्रीज हुआ। तो हमने गुड्स रिसिप्ट किया, गुड्स रिसिप्ट के बाद क्वालिटी ने सप्लायर का मटेरियल रिजेक्ट किया। कितना रिजेक्ट किया? सपोज 2 केस रिजेक्ट किया, 2 केस रिजेक्ट किया मतलब 100 क्वांटिटी रिजेक्ट किया आउट ऑफ 500। और अभी तक हमने इनवॉइस वगैरह कुछ भी पोस्ट नहीं किया है, तो वी कैन डायरेक्टली डू दी रिटर्न डिलीवरी। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, यूज मीगो अगेन, select here return delivery। ठीक है, when you select return delivery, system automatically takes the reference of material document। तो हमने मीगो में ये मटेरियल डॉक्यूमेंट जनरेट हुआ विथ मूवमेंट टाइप 101, इसी का हमको रेफरेंस देना है क्योंकि इसी में हमने ये क्वांटिटी रिसीव किया था, तो इसका रेफरेंस दिया, एंटर किया। नाउ यू सी मूवमेंट टाइप 122 इज बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड, ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड। ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होता है बिकॉज 101 में रिटर्न डिलीवरी का मूवमेंट टाइप मेंटेन्ड है। तो अभी जैसे मैंने OMJJ में जाओगे, OMJJ इज द T कोड फॉर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मूवमेंट टाइप। यहाँ पे
101 को अगर हम डिस्प्ले करते हैं तो यहाँ पे रिवर्सल और फॉलो ऑन मूवमेंट टाइप्स, यहाँ पे यू कैन सी 122 इज फॉर रिटर्न डिलीवरी, रिवर्सल के लिए 102 एंड रिटर्न्स के लिए जो अभी आगे देखने वाले हैं उसके लिए 161 मूवमेंट है। सो व्हेन वी सिलेक्ट रिटर्न डिलीवरी, मूवमेंट टाइप 122 इज बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड, हमको मैन्युअली डालने की जरूरत नहीं है। हियर अगेन यू हैव टू रिकॉर्ड द रीजन, क्या रीजन है जिसकी वजह से हम इसको वापस कर रहे हैं। मैंने इसको डैमेज सिलेक्ट किया, आइटम ओके, कितना क्वांटिटी हमको वापस भेजना है। सो यहाँ पे मैंने 2 केस सिलेक्ट किया, मतलब 100 क्वांटिटीज वी नीड टू रिवर्स। चेक, वी आर रिटर्निंग 100 क्वांटिटीज, ओके, रिटर्न डिलीवरी। पोस्टेड। तो जब रिटर्न डिलीवरी हमने पोस्ट किया तो क्या होगा, अभी स्टॉक जो है 100 क्वांटिटी से माइनस हो जाएगा, क्योंकि 100 क्वांटिटी हमने रिटर्न किया। सप्लायर को रिटर्न करेंगे मतलब उसको ट्रक में लोड करेंगे और उसको भेज देंगे सप्लायर के पास। तो हमारे स्टॉक से 100 क्वांटिटी कम हो गया। 100 क्वांटिटी कम हुआ तो उसका वैल्यू भी तो कम होगा। सो वी विल डिस्प्ले दिस एंड चेक द अकाउंटिंग एंट्रीज। तो अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट भी जनरेट होगा। क्या हुआ, 100 क्वांटिटी का जो वैल्यू है 960 रुपीज, दैट इज माइनस फ्रॉम द स्टॉक वैल्यू। स्टॉक की वैल्यू से 100 क्वांटिटी का जो भी अमाउंट है वो स्टॉक अकाउंट से माइनस हुआ, और प्लस कहाँ पे हुआ, जीआरआईआर अकाउंट पे प्लस हुआ, क्योंकि गुड्स रिसिप्ट पे स्टॉक अकाउंट में प्लस होता है, जीआरआईआर अकाउंट में माइनस होता है। तो अभी 100 क्वांटिटी उसको वापस भेजा तो इट्स लाइक रिवर्सल, स्टॉक में से उतने का वैल्यू माइनस हो गया और जीआरआईआर में उतने का वैल्यू प्लस हो गया। दिस इज हाउ यू पोस्ट अ रिटर्न डिलीवरी। वंस यू रिटर्न दिस मटेरियल बैक टू सप्लायर, आप क्या कर सकते हो, अगर सप्लायर ने वापस मटेरियल भेजा, उसने ये 100 क्वांटिटी का रिप्लेसमेंट हमको भेजा, तो अगेन वी कैन डू द रिसिप्ट ऑफ मटेरियल। उसके लिए नॉर्मल गुड्स रिसिप्ट नहीं यूज करते हैं, उसके लिए सब्सिक्वेंट डिलीवरी यूज किया जाता है। सो व्हेन यू सेलेक्ट सब्सिक्वेंट डिलीवरी, system will take the reference of material document that we created at the time of 122। तो 122 का जो मटेरियल डॉक्यूमेंट था उसका रेफरेंस देके हम सब्सिक्वेंट डिलीवरी पोस्ट करते हैं। यहाँ पे नॉर्मल गुड्स रिसिप्ट अगेंस्ट पीओ भी किया जा सकता है, बट दैट इज नॉट द करेक्ट वे ऑफ डूइंग इट। द करेक्ट वे ऑफ डूइंग इट इज सब्सिक्वेंट डिलीवरी, बिकॉज ये रिप्लेसमेंट है किसका, जो हमने उसको रिटर्न किया था उसका, तो उसका रेफरेंस देंगे। तो जो वैल्यू के साथ हमने उसको रिटर्न किया था उसी वैल्यू के साथ उसका रिसिप्ट होता है। ठीक है, तो 2 केस हमने उसको रिटर्न किया था, 2 केस का 100 क्वांटिटी का यहाँ पे गुड्स रिसिप्ट होगा। इस स्टोरेज लोकेशन एंड चेक इट एंड पोस्ट वापस आपके स्टॉक में 500 क्वांटिटी आपको दिखाई देगा। ठीक है, अगर हमने इसका इनवॉइस पोस्ट किया होता, ठीक है, तो इनवॉइस पोस्ट करने के बाद भी हम उसको रिटर्न कर सकते हैं, या पेमेंट होने के बाद भी हम उसको रिटर्न कर सकते हैं। तो अगर इनवॉइस हुआ है तो हमको रिटर्न डिलीवरी अगर पोस्ट करना है तो उसका क्रेडिट मेमो हमको पोस्ट करना पड़ता है, या पेमेंट हुआ है तो उसका क्रेडिट मेमो पोस्ट करना होता है। Now let me do one thing, let me post invoice for this PO 0 and okay, 4,810 case, calculate tax, with tax total amount is 536076, enter it here, simulate it and you can post it। इनवॉइस पोस्ट हुआ पूरा क्वांटिटी का, परचेस ऑर्डर हिस्ट्री में हम देख सकते हैं इनवॉइस इज पोस्टेड फॉर 10 केस 4,800 rupees। Now once the invoice is posted,
we want to do the return delivery again. I'll select return delivery. इसको मटेरियल डॉक्यूमेंट कौन सा देना होगा? अगेन गुड्स रिसिप्ट का मटेरियल डॉक्यूमेंट हमको इसको देना। 101 इसमें हुआ था 10 केस। इस मटेरियल डॉक्यूमेंट को मैं कॉपी करूंगा और इसको now out of this again I want to return 3 case 150 क्वांटिटी। रीजन डाला, एक पोस्टेड पोस्ट हुआ, ठीक है। वापस आप पीओ हिस्ट्री देखोगे 122, ठीक है। वन मोर 122 इज पोस्टेड हियर फॉर 3 केस, ठीक है। और अब आप इसको अभी वापस नहीं लेना है, ठीक है। ये जो क्वांटिटी हमने भेजा 3 केस, ये इसको हमको वापस नहीं चाहिए, मटेरियल नहीं चाहिए। तो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू पोस्ट अ credit memo. So again you go to Miro. In Miro you select credit memo, enter the invoice date and enter the PO number, इस PO को enter, ठीक है। तो कितने क्वांटिटी का क्रेडिट मेमो पोस्ट करना है? जितना हमने उसको रिटर्न किया उतने क्वांटिटी का हम उसको क्रेडिट मेमो पोस्ट कर सकते हैं। तो 3 केस हमने उसको रिटर्न किया था, 3 केस का जो भी अमाउंट होगा ऑटोमेटिक कैलकुलेट नहीं हो रहा है, 3 केस का अमाउंट रिटर्न डिलीवरी को डिस्प्ले करेंगे 1440, ठीक है। ये अमाउंट है, उसको हमको यहाँ पे डालना पड़ेगा 1440। कैलकुलेट टैक्स, क्योंकि टैक्स भी तो वापस लेना पड़ेगा जो हमने उसको पे किया है। एंटर इट, सिमुलेट इट। तो जो हमने 150 क्वांटिटी उसको रिटर्न किया, उसको हम उससे हमको पैसा वापस लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वेंडर का अकाउंट है जिसमें 1612.80 प्लस है, मतलब वेंडर से आना है। GRIR में 1440 गए, सो दैट GRIR विल बी नलिफाइड, और टैक्स जो हमने पे किया था वो भी हम रिटर्न में मांग रहे हैं पोस्टेड। तो उसके लिए आपने क्रेडिट मेमो पोस्ट किया, तो अभी वापस आप उसको रिसीव नहीं कर सकते, ठीक है। तो 3 केस का हमने यहाँ पे रिवर्सल मारा, दैट सॉरी क्रेडिट मेमो मारा, तो 3 माइनस यहाँ पे दिख रहा है, और ये 3 जो हमने रिटर्न डिलीवरी किया था। सो दिस इज हाउ रिटर्न डिलीवरी वर्क्स। Now next is returns. Now what is difference between return delivery and returns? Returns is you return the material to supplier. जैसे अभी हमने उससे 1000 क्वांटिटी लिया, 1000 में से सिर्फ 500 क्वांटिटी हमने यूज किया, और 500 क्वांटिटी अभी हमारे पास अवेलेबल है और उसका हमको कोई यूज नहीं है, हमने उसका प्रोडक्शन स्टॉप कर दिया है, जो भी रीजन है। नाउ आई एम नॉट गोइंग टू यूज दैट मटेरियल, I want to return or I want to sell that material. It's a kind of sell. So we can return the material back to supplier using a purchase order. उसके लिए हम PO निकालते हैं। कुछ केसेस में जैसे आप मटेरियल ऑर्डर करते हो तो यू एग्री विद द वेंडर, जैसे आपने कोई बड़ा केबल उसको ऑर्डर किया, उस केबल को आप पीस में कट करके यूज करते हो, तो उसके कुछ छोटे छोटे टुकड़े भी आप करते हो जो यूज नहीं होता, तो उस केबल में जो कॉपर है उसका वैल्यू है, तो वो जो रिमेन्स है केबल्स के वो आप सप्लायर को रिटर्न करना चाहते हो, आप सप्लायर को भेज के उससे पैसे लेना चाहते हो, देन वी कैन यूज रिटर्न्स, ठीक है। सो इट्स लाइक सप्लायर को मटेरियल बेचना, जनरली हम बेचते हैं किसको? कस्टमर को।
सप्लायर से खरीदा था, जो बचा है वो उसको वापस देना है और उससे पैसे लेना है, तो वी यूज रिटर्न्स परचेस ऑर्डर। ठीक है, सो फॉर दिस यू क्रिएट अ पीओ, दैट पीओ इज कॉल्ड एज रिटर्न्स पीओ, उसको रिटर्न्स पीओ बोलते हैं। एंड यू डू अ गुड्स इशू फ्रॉम योर सिस्टम। पीओ के अगेंस्ट में हम गुड्स रिसिप्ट करते हैं, बट बैकएंड में सिस्टम गुड्स इशू करता है, बिकॉज गुड्स इशू पे ही स्टॉक माइनस होता है, गुड्स रिसिप्ट पे स्टॉक प्लस होता है। यहाँ पे हमको स्टॉक को माइनस करना है, हमारे यहाँ से स्टॉक सप्लायर को भेजना है। यू डू अ गुड्स इशू एंड देन यू रेज अ क्रेडिट मेमो टू द वेंडर, मतलब हम उसको पैसा मांगते हैं, वो हमको इनवॉइस नहीं देता है। वी सेंड हिम अ क्रेडिट मेमो कि जो मटेरियल हमने तुमको इतना रिटर्न किया है उसका इतना पैसा होता है, वो हमको चाहिए। सो हाउ टू एग्जीक्यूट दिस? सो अगेन आई विल क्रिएट अ न्यू पीओ। ठीक है, एंड आई विल सिलेक्ट हियर टू केसेस। ठीक है, तो पीओ रिटर्न का है, ये कैसे पता चलेगा? Here you have a indicator returns item, so you need to select this checkbox. So when you select this checkbox at item level, it means this line item is for return to this supplier. तो इस supplier को हम ये material return करने वाले, ऐसा इसका मतलब होता है। Save the PO and display the PO. ठीक है, तो ये जो परचेस ऑर्डर है ये रिटर्न्स का पीओ है, बिकॉज वी हैव सिलेक्टेड रिटर्न्स चेकबॉक्स हियर। नाउ यू कॉपी दिस। इस मटेरियल का हमारे पास स्टॉक है, बहुत सारा है। ठीक है, स्टोरेज लोकेशन SL02 में 350 है, SL01 में 4900 है। तो कहाँ से इसको रिटर्न करना है वो हम एट द टाइम ऑफ रिटर्न वी कैन डिसाइड। तो यहाँ पे अभी गुड्स रिसिप्ट हम सिलेक्ट करेंगे, बिकॉज इट इज अ पीओ, एंड गुड्स रिसिप्ट अगेंस्ट परचेस ऑर्डर यू कैन सिलेक्ट, एंटर द पीओ नंबर एंड एंटर। ना भले ही आपने यहाँ पे गुड्स रिसिप्ट सिलेक्ट किया हुआ है, लाइन आइटम पे रिटर्न्स चेकबॉक्स सिलेक्टेड है, so because of that returns checkbox you can see the movement type 161 is selected here, and it's a goods issue movement type because it is minus, तो यहाँ से स्टॉक माइनस होगा। यहाँ पे स्टोरेज लोकेशन SL01 से मैं माइनस कर रहा हूँ, तो SL01 में 4900 है, यहाँ से 2 केस का क्वांटिटी मतलब 100 क्वांटिटी माइनस होगा, 100 क्वांटिटी माइनस होगा तो 4800 बचेगा। ठीक है, check it and you can post it, display it, material document is generated, accounting document is generated, स्टॉक में से वैल्यू माइनस होगा और GRIR में वैल्यू प्लस होगा। एंड इफ यू चेक द स्टॉक नाउ, यहाँ से 100 क्वांटिटी माइनस होगा, 4800 is in the stock. Now, once you do this goods issue, refresh the PO and you can see the purchase order history updated with movement type 161, 2 केस का जो है वो यहाँ पे माइनस हुआ है। Now we will raise a credit memo against this. तो मेरो में आना है, क्रेडिट मेमो सिलेक्ट करना है, पीओ नंबर डालना है, इनवॉइस डेट डालना है, एंटर। तो 2 केस का 960 रुपीज विथ टैक्सेस, इतना अमाउंट हुआ, इसको हमने डाला, एंटर, सिमुलेट। तो वेंडर से इतना पैसा आना है, GRIR इतने से क्लियर हुआ और ये टैक्स पोस्टेड। तो ये क्रेडिट मेमो हमने पोस्ट किया, तो ये क्रेडिट मेमो सप्लायर के पास जाएगा और उसके बिहाफ पे सप्लायर हमको पेमेंट करेगा एंड द ट्रांजैक्शन विल बी completed. This is what is return. This is how you do the return. ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऑर्डर्ड क्वांटिटी में 2 माइनस है, मतलब ये हम उसको भेज रहे हैं, ले नहीं रहे। नॉर्मल पीओ में ये प्लस में होती है वैल्यूज। ठीक है, अंडरस्टूड? एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस?
Tomorrow we will see the supplying order price unit in inventory management. Okay. Chalo. Bye bye. Take care.